Assalamualaikum everyone, welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, so we're starting off with P6 variant 61. Paper 6 हमारा क्या होता है? ATP, which is alternative to practical. It's from October-November 2019, and let's start. Question number 1. A student determines the weight of a meter ruler using a balancing method. Figure 1.1 shows the apparatus. The student places the meter ruler on the pivot. He places, पहले तो हम देख लेते हैं, follow करते जाते हैं, ठीक है? So first, the student places the meter ruler on the pivot. This is the meter ruler. It's placed on the pivot, ठीक है? He places the load P, labeled 1.5 Newton. ठीक है, ये P है और इसका वेट कितना बताया है? 1.5 न्यूटन. So I'm just gonna write it down over here so that it is easier. इसका वेट है 1.5 न्यूटन, तो downwards 1.5 न्यूटन. ठीक है, on the meter ruler at the 90 centimeter mark. ये भी दिख रहा है कि 90 centimeter mark पे P placed है. Keeping P at the 90 centimeter mark, he adjusts the position of the meter ruler on the pivot so that the meter ruler is as near as possible to being balanced. ठीक है. In table 1.1, he records the distance A from 50 centimeter mark to the pivot. आपको नज़र आ रहा है कि A क्या है? 50 centimeter से pivot तक की distance है. ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर आधा है रूलर का, बिकॉज इट्स 1 मीटर रूलर, से लेके पिवट तक. ठीक है, एंड कैलकुलेट एंड record in table 1.1 the distance B between the center of the load P and the pivot. ठीक है, B फिर pivot से लेके लोड के सेंटर तक है. ठीक है, अब आपको ये चीज़ नज़र आ रहा होगा कि जैसे A यहाँ शुरू हो रहा है, it's 50, right? Let me just write down. A starts off at 50 and B ends off at 90. Therefore, the total distance in A plus B gives us what? Gives us 40 centimeters. ठीक है? 40 centimeters. A और B के बीच में. So, A plus B is equals to 40 because obviously 90 यहाँ है. It's in between 90 and 50. So, it's obviously 40. Right? So, we're going to have to fill out these values. Calculate and record in table 1.1 the distance B between the center of load P and the pivot. Now, as we know that A plus B gives us what? A plus B gives us 40. So, यहाँ पर हम B कैसे निकालेंगे? B is equals to 40 minus A. So, यहाँ पर A है 23.1. ठीक है, so 40 minus 23.1 gives us 16.9. So answer here is 16.9 centimeters. And A upon B, A हमारे पास है 23.1 divided by 16.9. The answer is 1.366. but आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर all of these values are in 3 significant figures. All of them. So we're going to go 1.37 so that we have 3 significant figures, sorry. 1.37, ठीक है. फिर क्या लगा है B. The student repeats the procedure using 1.2 newtons, 1 newton, 0.8 newtons, 0.5 newtons. The readings and the results are shown in table 1.1. ये सारे different P की values हैं और P की जब values change होती हैं तो A की भी value change हो रही है और B की भी value change हो रही है. For example, अगर P, जैसे P का यहाँ पर वेट लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, सही, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा लंबी लेंथ है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर भी वेट आ रहा होगा. तो जब P इसकी एक्स्ट्रा लेंथ के मास के वेट के इक्वल हो तो रॉड बैलेंस होगा, तो मीटर रूलर बैलेंस होगा. अगर हम P का मास कम करते गए, ठीक है, मतलब छोटा सा हमने P कर दिया, यहाँ पर फिर कम फोर्स आ रही होगी, तो यहाँ फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगी as compared to the P's force. So what? It's going to flip over in anti-clockwise. Therefore, हम pivot को क्या करेंगे? Pivot को इस तरफ move कर देंगे. तो आपको नज़र आएगा कि जितनी हमारे पास P की वैल्यू कम हो रही है, P के मास की या P के वेट की, उतना ही ज़्यादा A plus B हमारा बढ़ रहा है. ठीक है,
मैं बता रही हूँ, तो सॉरी, उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो पिवट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जितना हो रहा है इस तरह कि कम हो रहा है हमारे पास मास बी बढ़ रहा है, ठीक है, बी बढ़ रहा है क्योंकि हम पिवट को इस तरफ मूव कर रहे हैं। ए की वैल्यू कम होगी क्योंकि ए तो शुरू यहाँ से ही होगा ना, तो अगर पिवट इस तरफ आएगा, समझे पिवट इस तरफ आ गया, ठीक है, एक सेकेंड, पिवट इस तरफ आ गया तो इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू कम हो जाएगी और बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन टोटल तो 40 ही रहेगा, सो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस टू द टोटल, बट इस तरह होगा क्योंकि पिवट लेफ्ट के टुवर्ड्स जाएगा, सो दैट इट कांट रिएक्ट विद द weight of the mass. Say, plot a graph of weight of load P, ठीक है, P हमने करना है, कहाँ लिखा हुआ है, y axis पे, against A upon B which is x axis. You do not need to begin your axis at the origin 0.0, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ है कि y axis पे हमें करना है P upon, obviously P का वैल्यू है न्यूटन क्योंकि उसका दिया हुआ है, एंड सॉरी ये तो मैंने एक्स एक्सिस कर दिया, P उसकी वैल्यू गिवन है न्यूटन में, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है A अपॉन B, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट 2 नंबर्स, ठीक है, एंड वी डू नॉट नीड टू बिगिन आवर एक्सिस एट द ओरिजिन, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ देख लेते हैं, पहले हम सारी P की वैल्यूज़ देखते हैं, शुरू कहाँ हो रही है और एंड कहाँ हो रही है, ठीक है। P की वैल्यू शुरू हो रही है एट अराउंड यहाँ से करेंगे ना 0.5 से लेके 1.5 तक, ठीक है, ये आपने दिमाग में रखना है, 0.5 से लेके 1.5 तक, एंड ए है अराउंड 0.5 से लेके वापस अराउंड 1.5 तक, दोनों की बहुत सिमिलर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको कर देते हैं, ठीक है, 0.5 से लेके 1.5 तक। तो अगर हम करें, लेट्स जस्ट से वी कैन डू, let's see, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, nope. If we do, ऐसे कर सकते हैं कि 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, that works. 0.3, मैं लिख देती हूँ क्योंकि जो हमारे पास इसकी वैल्यू है A अपॉन B वो आपको नज़र आ रहा है कि 0.5 से कम है, ठीक है, तो हमें 0.5 सबसे इनिशियल हमारी वैल्यू नहीं हो सकती। सो लेट्स सी इफ़ आई डू 0.3, 0.6, 0.9, ठीक है, 1.2, 1.5, सही, बिकॉज आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आपने यहाँ कर दिया यहाँ पर आपने कर दिया कि 0.5, 1.5, या कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप अपना ग्राफ को जितना बड़ा हो सके करें, ठीक है। ये भी आप कर सकते थे, चाहें तो आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ करते 0.5 और 1.5, लेकिन ये सही नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आप देखें कितना ग्राफ एम्प्टी हो गया, ये गलत होता, ये स्केल गलत होता, ठीक है। सो आई थिंक सबसे बड़ा स्केल यही बनना है 0, अगर आपको कोई और इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, तो मैं यहाँ पर भी यही कर दूँगी, फिर 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, एंड ज़रूरत नहीं इसके आगे की। सो अब हमें बस इसको फिल करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, अब आपको नज़र आ रहा है ये किसका ग्राफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है बेसिकली। अब हमने ये कर दिया, तो अब क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिन द ग्रेडियंट जी ऑफ द ग्राफ, शो क्लियरली ऑन द ग्राफ, क्या लिखा हुआ है, शो क्लियरली ऑन द ग्राफ हाउ यू ऑब्टेन्ड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ग्राफ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया था, ठीक है, दिखाने के लिए कि मैंने किस तरीके से अपना आंसर फिगर आउट किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि ट्रायंगल क्यों ड्रॉ किया, y2 माइनस y1 यूज़ कर सकती हैं। हाँ, हम y2 माइनस y1 कर सकते हैं, लेकिन जब हमें सीधा बोला हुआ है कि हमने शो करना है तो हमें शो करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, आप जब भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो आप वैल्यूज़ जो हमें ग्राफ में दी होती है ना, हम वो यूज़ नहीं करते, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो जो भी आप पहले तो आप 2 वैल्यूज़ मार्क करेंगे अपनी लाइन पे, ठीक है, कोई भी 2 वैल्यूज़ हो, मैं दिखाती हूँ आपको, कोई भी 2 वैल्यूज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
लेट मी जस्ट यूज़ अनदर कलर, लेट मी यूज़ ग्रीन. ठीक है, कोई भी दो हमने वैल्यूज़ मार्क कर ली जो हमारे लिए आसानी हो कैलकुलेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल एक ये कर ली. ठीक है, यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा कलर, एक मिनट. फॉर एग्जांपल एक ये आ रहा है, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इससे तो बेहतर यही है. अच्छा, फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ पर वैल्यू जनरेट किया और एक हम कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये दोनों क्लियरली नज़र आ रहे हैं. ठीक है, इनके अंदर मैं छोटा ऐसा बनाता है कि सच में नज़र आ जाए. सही है, ये तो हमने वैल्यूज़ कर ली. अब इस पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो हम करेंगे इस तरह और इस तरह. ठीक है, तो अब हमने दो पॉइंट्स का यूज़ करके ट्रायंगल यूज़ कर लिया. अब इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि हाइट अपॉन बेस, जो बेसिकली मतलब यही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो अब इसमें आप चाहें तो देखिए आपको ये ड्रॉ करना है, लेकिन आसानी तो ये होगी कि आप y2 माइनस y1 वाला करें. तो हम यहाँ पर पॉइंट्स पर जो ना वैल्यूज़ लिख देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट है, इसका x है 1.2 एंड इसका y होगा यहाँ पर अराउंड 1.3. ठीक है, अराउंड 1.3. सही. और जो दूसरा वैल्यू है इसका है 0.3 और इसका y है अराउंड 0.4. ठीक है, सो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 1.2 एंड 1.3 और जो नीचे वाला है 0.3 एंड 0.4. तो हम यहाँ पर अपने लिखेंगे. ठीक है, तो y2 क्या है हमारे पास, y2 है हमारे पास 1.3 माइनस 0.4 अपॉन 1.2 माइनस 0.3. तो इसमें आंसर क्या आएगा, एक सेकेंड, सॉरी, ये हमने कर लिया. सही. तो हमें बोला हुआ है कि हमें ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम में आंसर नहीं दिया हुआ, आपका अपने अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन आपने करना है कि ट्रायंगल मेथड इंडिकेट करना है. ठीक है, और जो आपकी वैल्यू होगी उसमें आपको वो सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ करने हैं जो आपने ऊपर दिखाए हैं, मतलब जो ऊपर इंडिकेटर हैं. तो 1.3 माइनस 0.4 अपॉन 1.2 माइनस 0.3, आंसर आ रहा है 1. मेरा टोटल 1 आया है, आपका शायद थोड़ा ऊपर आ जाए थोड़ा नीचे आ जाए, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस. तो मैं 1 नहीं लिखूँगी, मैं अपने लिए 1.0 लिखूँगी. तो क्यों मैं एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले रही हूँ. ठीक है, अब क्या करना है, द ग्रेडियंट g is numerically equal to weight of the meter ruler. Write down the value of w to an appropriate number of significant figures for this experiment. Include the unit. अब आपको ये करना है कि वेट हमसे पूछा हुआ है, हमने पीछे भी देखा है कि वेट सारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिए हुए हैं, सारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिए हुए हैं ना. तो हम यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही देंगे. आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बेहतर है क्योंकि पीछे 2 में दिया हुआ है. तो मैं यहाँ पर भी, यहाँ पर W के लिए, G के लिए अगर आप सिर्फ 1 लिखें तो भी मसला नहीं है, लेकिन मैंने 1.0 प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर आपको 2 या 3 ही यूज़ करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1.0 और वेट का क्या होता है, न्यूटन. ठीक है, इंक्लूड द यूनिट. सही. E. The student has assumed that the center of the mass of the meter ruler is at the 50 centimeter mark. Explain briefly how you would find as accurately as possible the position of the position of the center of the mass of the meter ruler. No extra apparatus or material are available. तो सीधी बात है, क्या करेंगे आप अपने रूलर को सिर्फ पिवट पे रखेंगे. यू आर नॉट गोना यूज़ एनी मासेस, नथिंग. इफ़ वो बैलेंस हो गया पिवट पे एग्जैक्टली एट 50 सेंटीमीटर या जिस जगह पे भी, तो वो जगह होगी सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सो दैट्स लिटरली ऑल यू गोना राइट इज फॉर 1 मार्क. सो बैलेंस रूलर ऑन पिवट, पिवट लिख दिया मैंने, सॉरी, on pivot without usage.
ठीक है, without usage of any load mass, जो भी, ठीक है. The point where it balances is the center of mass या center of gravity. ठीक है, ये हो गया. Okay. Briefly state the main difficulty that you would have while carrying out this type of balancing experiment. Obviously, एक stable balance करना कि वो हिल ना रहा हो, ऊपर नीचे नहीं हो रहा हो कहीं पे भी, तो यही हम लिखेंगे obtaining a stable balance, because it will be difficult, because it will be swinging. ठीक है, so to get it to stop swinging and stay very still on a specific point, that is difficult. Say. Okay, question number 2. A student investigates the resistance of lamps. She uses the circuit shown in figure 2.1. यहाँ पे क्या है हमारे पास? We have a lamp, we have a power supply, we have a switch with an ammeter connected in series and a voltmeter connected in parallel. She records the potential difference across the lamp 1 and the current in the circuit. The meters are shown in figure 2.2 and figure 2.3. Write down the meter readings. तो V1 की रीडिंग क्या आ रही है? हम जूम इन करते हैं. ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास है 2, यहाँ पर 3, और इनके बीच में हमारे पास कुछ 4 पॉइंट्स है. तो ये क्या होगा? 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 30. सॉरी 3, 2, 2.4, 2.6, 2. क्या कर रही हूँ? 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3. ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2.4 और 2.6 के बिल्कुल बीच में. तो आंसर क्या होगा? 2.5. तो हम यहाँ लिख देंगे 2.5 वोल्ट्स. अब एमीटर पर जाते हैं. ये तो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल 0.2 बिल्कुल 0.4 के बीच में आया, तो 0.3 ही होगा डेफिनेटली. ठीक है, तो 0.3 एम्पेयर्स. ठीक है, calculate the resistance R of the lamp using the equation R is equals to V upon I. इक्वेशन भी दी हुई है, इसमें क्या करना है? आपको बस करना है और आंसर आ जाएगा आपका 8.33. सॉरी 8.33. मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ किए हैं. ठीक है, आप 2 भी कर सकते हैं, आसानी है. ठीक है. B. The student connects a lamp 2 in series with the lamp 1. ये याद रखना है आपको, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है. तो इसमें क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी और करंट वही रहेगा. ठीक है. She records the potential difference across the lamp 1 and lamp 2 and the current in the circuit. ठीक है, अब ये लैम्प 2 के सामने क्या वोल्टेज है ये दी हुई है. करंट अभी क्या है? 0.21 है. तो पहले हमारे पास करंट था 0.3 एम्पेयर्स. ठीक है, एक लैम्प में जो आ रहा था. सही. अब करंट क्या हुआ है? करंट इंक्रीज हो गया, सॉरी करंट डिक्रीज हो गया, 0.21 आ गया क्योंकि 2 लैम्प्स है ना. तो करंट डिक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर दोनों में डिवाइड हो रहा है. अब वोल्टेज इसका 2.5 आया था पहले. ठीक है, L1 का. अब L2 का वोल्टेज आ रहा है 2.4 और I2 आ रहा है 0.21. अब हमें इसकी भी रेजिस्टेंस निकालनी है. इसकी भी रेजिस्टेंस निकालें आप तो होगा 2.4 डिवाइडेड बाय 0.21. तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 11.4. हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे. उप्स, ये क्या है? 11.4 ohms. पीछे मैंने ohms लिखा था? नहीं, मैंने नहीं लिखा था. Please do not forget to write down your units. She connects a lamp L3 in series with L1 and 2. अब हमने तीसरी लैम्प भी लगा दी. अब इसकी रेजिस्टेंस कुछ और ही ज़्यादा है और करंट और ही कम है, लेकिन वोल्टेज अभी भी 2.4 आ रहा है इसका. ठीक है. The student suggests that the resistance R3 of the 3 lamp connected in series should be given by the equation R3 is equals to 3 into R1. तो हमारे पास R1 क्या था?
R1 था 8.33, तो 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8.33, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 24.99, अराउंड 25। तो आंसर 25 यहाँ पर नहीं है ना, स्टेटमेंट मैच करता है रिजल्ट के साथ, नहीं कर रहा। तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो इस चीज़ के साथ अग्री नहीं करेंगे, सही। तो हम बल्कि नहीं, हाँ, R3 क्या आ रहा है 14.1 एंड R1 है हमारे पास 8.33। सो इट्स नॉट वर्किंग आउट। हम लिखेंगे कि पहले हम यहाँ पर वो कर लेते हैं 3 इंटू, ठीक है, 3 into R1 which is around 8.33 is equals to 25, और हमारा आंसर है 14.1 which is obviously not, ठीक है। सो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, I do not results नहीं, हम लिखेंगे untrue लिखेंगे हम, या तो फिर स्टेटमेंट लिखेंगे कि state whether the results agree with the suggestion, disagree with suggestion। और इसकी रीज़न क्या है, the results we obtained do not match with the suggestion। अब मार्किंग स्कीम आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2C पे स्टेटमेंट मैचेस रिजल्ट, तो हमने, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बोल रहा है कि हाँ स्टेटमेंट रिजल्ट के साथ मैच कर रही है। वो बोल रहा है कि जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, चाहे आप अग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, वो आपके रिजल्ट से मैच करनी चाहिए। इसमें हमारे पास होता है ECF के मार्क्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी रेजिस्टेंस इनिशियली आपने निकाली थी कुछ, आई डोंट नो, अगर आपने इनिशियली रेजिस्टेंस निकाली होगी, समझो 4.5, हमारी एक्चुअल में तो 8.3 थी, समझो आपने 4.5 निकाली, और यहाँ पर आप 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही कोई आंसर आएगा 14 समथिंग, ठीक है। तो तब तो आपके रिजल्ट्स मैच करेंगे। तो आप अगर उस वक्त लिखते हैं कि द स्टेटमेंट इज़ दैट आई अग्री विथ द सजेशन, तो आपको मार्क मिलेगा ECF का, क्योंकि आपके पास पहले गलत आया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस गलत की वजह से आपको ये भी गलत किया जाएगा। समझ आ रही है? कुछ बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि जस्टिफिकेशन मैचेस विद द स्टेटमेंट, हमने यही किया है, हम अपने रिजल्ट्स को स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इसका मार्क मिलेगा। इवन अगर आपके पास ये वैल्यू गलत है और आपने आगे जाकर गलत कैलकुलेशन की है, अगर आप सही से बता पा रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर मिली है वो इसके इक्वल है या इक्वल नहीं है, आपको डेफिनेटली मार्क मिलेगा, ठीक है। अब D, complete the circuit diagram in figure 2.4 to show the 3 lamps connected in parallel, the voltmeter connected to measure the potential difference across the lamps, and a variable resistor connected to control the current in the 3 lamps। अब पहले तो हमें बोला है कि हमें 3 लैम्प्स को पैरेलल में कनेक्ट करना, तो पहले हम वो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। एक, ठीक है, एक आ गया हमारे पास, एंड 2, उप्स, एंड 3, ठीक है। सही, अब इसको हम इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। You get the gist, ठीक है, ये इस तरह कनेक्ट हो रहा है। अब क्या करना है, हमने इसके पैरेलल हमें वोल्ट मीटर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, वोल्ट मीटर भी हमने पैरेलल में ड्रॉ कर लिया, और हमने अपनी 3 लैम्प्स भी ड्रॉ कर ली। और हमें क्या ड्रॉ करना है, वेरिएबल रेजिस्टर। अब आपको पता है वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल ये है, रेक्टेंगल ऐसे, और उसके साथ फिर एरो आता है, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टर।
And we're done with this. Question number 3. A student investigates the cooling of water. The thermometer in figure 3.1 shows room temperature at the beginning of the experiment. तो हमने रिकॉर्ड करना है इसको. ये at the beginning of the experiment रूम टेम्परेचर है. जूम करते हैं. क्या आ रहा है? 30 अराउंड 34 आ रहा है. ठीक है, 34 से थोड़ा सा कम है, आपको नज़र आ रहा होगा, बट लाइक आई थिंक 34 सही है. सही. सो आई एम जस्ट गोना राइट 34 डिग्री सेल्सियस. आपको डिग्री सेल्सियस लिखना है क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिग्री सेल्सियस लिखा है. सो sorry, not 34, 24. The student pours 200 centimeter cube of hot water into a beaker. He places the thermometer in the water. He measures the temperature of the hot water in the beaker. He immediately starts the stop clock and continues reading the temperature of the water every 60 seconds. The temperature readings are shown in table 3.1. ठीक है, हर 60 सेकंड में वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है और ये उसकी रीडिंग्स है हर 60 सेकंड. तो ऑब्वियसली हमें टाइम लिखना है. हमें पता है कि इनिशियली तो सिमुला 60 सेकंड में 60 + 60 इज़ 120, 120 + 60 इज़ 180, 180 + 60 इज़ 240. ठीक है. Complete the time column in table 3.1. Complete the headings in table 3.1. अब ऑब्वियसली टाइम का यूनिट होता है सेकंड एंड टेम्परेचर में पता है कि डिग्री सेल्सियस में लिया जा रहा है क्योंकि ऊपर उसमें थर्मामीटर है. कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द फर्स्ट 120 सेकेंड्स. ठीक है, तो ज़ीरो पे तो क्या था? ठीक है, जो टाइम ज़ीरो था उस पर था हमारे पास 85 और उसके बाद क्या बन गया? 85 से हमने 95 से हमने जंप मारा. 120 पे क्या है? 85. सो 95 minus 85 gives us 10. तो यहाँ हम लिखेंगे 10. Calculate the decrease in temperature during the last 120 seconds. Last 120 seconds मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, क्योंकि ये 60 है फिर ये 60 हो गया तो क्या हो गया? 120. सो it will be 85 minus 78. उसका आंसर आ रहा है 7. तो हम यहाँ लिखेंगे 7 डिग्री सेल्सियस. दोनों में बल्कि डिग्री सेल्सियस नहीं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है ना, इसमें डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस विल नॉट गिव अस डिग्री सेल्सियस. यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए. फिर खैर, और वैसे भी टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं होता. D1. Tick the box to show your conclusion from the results. The average rate of cooling is greater the first 120 seconds and the average rate of cooling in the ठीक है last 120 seconds. The average rate of cooling is less in the first 120 seconds than in the average rate of cooling in the last 120 seconds. The average rate of cooling is the same in the first 120 and the last 120 seconds. तो obviously सबसे पहला वाली करेक्ट होगा क्योंकि हमने देखा कि इनिशियली फर्स्ट 120 सेकंड में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है 10 से और लास्ट 120 सेकंड्स में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है 7 से. तो रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज कर रही है. ठीक है, तो अब हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम which is 120 seconds, initially 10 degrees Celsius dropped and later only 7 degrees Celsius dropped, which shows decrease in rate of cooling. ठीक है, suggest 2 ways in which a student could reduce the loss of thermal energy from the beaker in this type of experiment. Obviously आप beaker को insulate कर सकते हो. ठीक है, insulate beaker. आप lid यूज़ कर सकते हो. आप ऑब्वियसली जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना फास्ट उसका टेम्परेचर लॉस होता है. फॉर एग्जांपल कोई दो हमारे पास बीकर हैं, एक बीकर में 100 डिग्रीज़ का पानी और एक बीकर में 10 डिग्री का पानी. तो
बहुत टाइम लगेगा वो 10 डिग्री को 9 डिग्री में कन्वर्ट होने में, 1 डिग्री गिराने में, लेकिन उस टाइम में ही वो 100 से लेके लिटरली 70 तक पहुंच जाएगा। जितना ज़्यादा इनिशियल टेम्परेचर होता है उतना जल्दी वेट ड्रॉप होता है, आई मीन हीट लॉस होती है। तो हमें रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी डिक्रीज करनी है, तो हम बोलेंगे लोअर स्टार्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि वी यूज़ अ हायर रूम टेम्परेचर सो दैट the temperature of the beaker equates to the temperature of the surroundings, so it doesn't drop as much, so it doesn't really radiate as much thermal energy from the beaker to the outside world. We can also say we use a smaller volume of water, use lesser surface area, because all of these things reduce thermal loss, ठीक है। smaller surface area of water या तो फिर volume of water, ठीक है। Draw a diagram of a measuring cylinder used to determine the volume of water. Show clearly the water level, and draw with the ruler a straight line showing the line of sight required to obtain an accurate reading of the volume of the water. अब आपको पता है कि क्या होगा कि पहले तो हम measuring cylinder draw करते हैं, ठीक है। It doesn't have to be the prettiest, it doesn't really matter. 2 मार्क्स का है तो कुछ इतना खास नहीं दिखाना, बस आपको मेनिस्कस दिखाना होगा कि किस तरह बन रहा है, और लाइन जो हमें लाइन दिखानी होगी वो किस तरह बन रही है, और साइड के किस तरह आ रही है, ठीक है। So let me just draw the cylinder. ठीक है, सही। और आपको पता है कि पानी में मेनिस्कस इस तरह बनता है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, पानी में मेनिस्कस इस तरह बनता है बिकॉज जो इसकी एडहीसिव फोर्स होती हैं वो कोहेरेंट फोर्सेस से ज़्यादा होती हैं। तो पानी बहुत अट्रैक्ट होता है अपनी सराउंडिंग्स पे बिकॉज ऑफ इट हैविंग एन OH बॉन्ड, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। तो हमारे पास इस तरह का मेनिस्कस बनेगा। लेट मी जस्ट, ठीक है, ये हमारे पास मेनिस्कस बनेगा। एंड क्या होगा कि हम साइड व्यू करते हैं वो हम किस तरह व्यू करते हैं, हम ये देखते हैं, उप्स, ये, ठीक है। हमने यही किया जो हमें बोला हुआ था, ड्रॉ विद रूलर अ स्ट्रेट लाइन शोइंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर होती है साइड के, ठीक है। और वो हमेशा वाटर में जो इस तरह का लोअर मेनिस्कस होता है, इस तरह का कुछ चीज़ों में इस तरह भी मेनिस्कस बनता है, लेकिन जो लोअर होता है उनकी यहाँ आती है, और जो हायर मेनिस्कस होता है उनकी यहाँ आती है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रीडिंग होगी x, y, z वो आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। Question number 4. A student is investigating the time taken for metal balls to stop moving after being released on a curved track. Figure 4.1 shows the shape of a track. ठीक है, अब ये क्या है, एक तरीके से डोम शेप ट्रैक है। The track is flexible, so the shape of the curve can be changed. Shape of the curve can be changed. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर उन्होंने बॉल रिलीज़ कर दी जहाँ पर भी, और वो यूं मूव हो रही है, और फिर एज टाइम वो अंदर आती जा रही है, मतलब उसकी लेंथ कब है यूं करके वो रुक जाएगी, इस तरह होता है। अब इसके रीज़न बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो पुल डाउन हो रहा होता है। सेकंड, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑल्दो इनर्शिया पुश कर रहा होगा, उसको वापस ला रहा होगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटी की वजह से मेटल बॉल रुक जाती है, मतलब यहाँ पर आ जाती है इस तरह करके, ठीक है। The following apparatus is available: a selection of metal balls of different masses, the flexible track, clamps to hold the track, a stopwatch, a tape measure, and a meter ruler. The student can also use other apparatuses and materials that are usually available in a school laboratory. Plan an experiment to investigate a factor that affects the time taken for metal balls to stop moving after being released on a curved track. ठीक है, हमें क्या एक्सपेरिमेंट प्लान करना है, ये सेंटेंस आप बहुत केयरफुली देखें। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट अ फैक्टर दैट इफेक्ट्स द टाइम टेकन फॉर मेटल बॉल्स टू स्टॉप मूविंग आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑन अ कर्व्ड ट्रैक। तो बेसिकली हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, ये तो हम मास को रखें कि हम डिफरेंट मासेस के बॉल्स लें और एक ही टाइप के कर्व उस पर रखें पाथ पे, और हम देखें कि
क्या वो is it taking a higher or a lesser time for the metal balls to stop moving? Or we could use the same ball of the one mass and we use different curvatures of the track. एक ट्रैक इस तरह हो और एक ट्रैक इस तरह हो और एक ट्रैक इस तरह हो, एक ट्रैक इस तरह हो, तो हम उसमें फिगर आउट करें कि is it taking the same time to is it taking the same time to stop moving after it's being released. Also, तो नहीं बात बताऊंगी. In a plan you should state how you would expect the balls to move, explain how you would carry out the investigation, state which variables you would keep constant and which variables you would change, draw a table or tables with columns to show how you would display your readings. You are not required to enter any readings in the table. बस आपको table दिखाना है, उसमें बस आपको अपनी headings दिखानी है. Explain how you would use your readings to reach a conclusion. ठीक है. So let's start. You may add a diagram if it helps your explanation, but यहाँ पर diagram की जगह नहीं दी हुई, usually दी हुई होती है. ठीक है. तो I'm not gonna add one. अगर आपको कुछ addition करनी है मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी. ठीक है. So let's start. पहले हमें बताना है कि how the ball will move, ठीक है, back and forth like a pendulum. ठीक है. तो ये किस तरह होगा कि obviously कि वो inertia की वजह से gravity की वजह से move हो रहा है. ठीक है. पहले हम शुरू से points पढ़ लेते हैं. State how you expect the balls to move. तो obviously हम क्या करेंगे, हम एक एंड पे प्लेस करेंगे और वो दूसरे एंड पे जाएगा और वो यूँ स्विंग करेगा. How would you carry out the experiment? तो हम बॉल को एक स्पेसिफिक पोजीशन से रिलीज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ये है. ठीक है. यहाँ ऊपर ही दिखा देती हूँ. ये हमारा ट्रैक है, हमने यहाँ से रिलीज़ कर दिया तो वो मूव डाउन करेगी. ठीक है. तो फिर हम बोलेंगे कि क्योंकि हमने बात की थी कि हम डिफरेंट वो करेंगे मासेस यूज़, तो हम इसी पोजीशन से डिफरेंट मासेस के बॉल्स, ऑब्वियसली क्योंकि अगर एक ही मटेरियल है तो वो बॉल बड़ा होता जाएगा. ठीक है. अगर डिफरेंट मटेरियल्स और बॉल सिर्फ हैवी होते जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि साइज़ का होगा, लेकिन डिफरेंट मासेस हो सकते हैं. रिलीज़ करेंगे उस सेम पॉइंट से. ठीक है. उसी ट्रैक पे. आई थिंक ये वाला ज़्यादा आसान है कि मैं एक ही ट्रैक का शेप यूज़ करूँ और डिफरेंट मासेस के बॉल्स यूज़ करूँ. ठीक है. दूसरा भी आप कर सकते हैं कि हम डिफरेंट ट्रैक्स लें, उस पर एक ही मास का बॉल डालें, बट मुझे ये आसान लग रहा है तो मैं ये करूँगी. ठीक है. फिर हम बताएंगे कि हम एटलीस्ट 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ ऑफ मासेस ऑफ बॉल यूज़ करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल टू बी चेंज क्या होगा, बॉल्स का मासेस. स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट क्या होगा, ट्रैक का कर्वेचर. फिर हम टेबल बताएंगे, तो हम लिखेंगे कि हर उसमें पहले हम टाइम का एक टेबल बनेगा कि इतने टाइम में ये वाला मास का बॉल वो हो रहा है और इतने टाइम में हम ये वाला मास का. फिर हम बोलेंगे कि आपको ग्राफ बनाना होगा और फिर उसमें आप अपना डायरेक्शन अपना रिलेशनशिप देखेंगे. मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं बस इसको लिखूँगी. ठीक है. सो वी आर गोना स्टार्ट ऑफ. ठीक है. हाउ विल द बॉल मूव. ऑब्वियसली द बॉल विल मूव फ्रॉम वन एंड टू द ट्रैक टू अनदर. इट विल मूव बैक एंड फोर्थ लाइक अ पेंडुलम. ठीक है. सो द बॉल will move in a pendulum's moving manner. ठीक है. एंड हम किस तरीके से उसको मूव कराएंगे, हमने बोला है कि अब मैं पूरा एक्सपेरिमेंट लिखूँगी. ओके. मैं मतलब आप एक साथ भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग सेंटेंसेस में, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है. सो फर्स्ट we will use the same track throughout the experiment. ये तब ये लिख सकते हैं, the track's curvature will be constant. तो चेंज क्या होगा, we will use balls of different masses. And see if the time they take to stop changes or is affected
ये हमने बता दिया, ये हमें इस पर 3 मार्क्स मिल गए लिटरली इन चीज़ों में। अब हमने बोला है कि वी विल यूज़ at least 3 different masses of balls and try that the balls all have the same diameter या वॉल्यूम। ये मैंने इसलिए लिखा है कि क्या पता कि आप अगर बड़ा बॉल यूज़ करें तो उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया हो, तो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस हो, तो वो जल्दी से रुक जाए बॉल, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस से जल्दी से रुक जाए। लेकिन अगर छोटा बॉल हो, कम सरफेस एरिया हो, कम एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी, तो वो मतलब वो ज़्यादा टाइम चलता है ट्रैक पे। तो what will this do? It will help give us correct values, ठीक है। अब हमने बताना है कि हमने ये बता दिया सारी चीज़ें कि हम क्या रिपीट करेंगे, क्या हमने क्या किस तरह क्या करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे use a specific या constant position from where the balls will be released on the track, ठीक है। तो ये भी हमने बताना है क्योंकि हमें यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू वुड कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट, उसमें हमें हर चीज़ बतानी है, ठीक है। एंड फिर हम क्या बताएंगे कि अब हम टेबल भी ड्रॉ करना था हमें, ठीक है। टेबल ड्रॉ करते हैं। सो पहला हमारा होगा इसमें टाइम पर सेकंड का एक टेबल होगा और एक होगा मासेस, ठीक है, मासेस ऑफ बॉल यूज्ड केजी में, ठीक है। दिस इज़ अ टाइम, कौन सा टाइम है ये? टाइम फॉर बॉल्स टू स्टॉप मूविंग, ठीक है, ये है। तो आपने टेबल भी बना लिया, ये आपको एक और मार्क मिल गया। अब क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट में ये लिख रही हूँ, यूज़ वैल्यूज़ फ्रॉम द टेबल टू प्लॉट अ ग्राफ and determine the relationship between balls of different masses and the time they take to stop moving, ठीक है। This was a fairly simple investigation that we had to write down, and I hope you all understood everything in this paper. If you don't understand anything, please mention it in the comments and I will try my best to get back to you. Thank you for watching this video and I will see you guys in the next one. Allah Hafiz.